नमस्ते। अब हम पार्ट 2 द शहनाइयों बिस्मिल्लाह खान के 7 पैराग्राफ्स रीडिंग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने पैराग्राफ 1 से 6 तक कंप्लीट कर लिया था। When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Sahnai. He poured his heart out into Raag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो बिस्मिल्लाह खान पहले ऐसे भारतीय बने जिन्होंने अपनी शहनाई के सुरों से पूरे राष्ट्र का अभिनंदन किया। उन्होंने लाल किले से राग काफी में अपने दिल की सारी भावनाएं उड़ेल दी। उस समय श्रोताओं में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, जिन्होंने बाद में अपना प्रसिद्ध भाषण ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी नियति से साक्षात्कार दिया था। 8th, Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. The King of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music. Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called Gunj Uthi Sehnai. The film was a hit and one of Bismillah Khan's compositions, Dil Ka Khilona Hai Toot Gaya, turned out to be a nationwide chartbuster. Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah B. Khan's ventures in film music were limited to two: Vijay Bhatt's Gunj Uthi Sehnai and Vikram Srinivas' Kannada venture Sandhi Appanna. I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. बिस्मिल्लाह खान ने भारत और विदेशों दोनों जगहों पर कई यादगार प्रस्तुतियां दी हैं। उनकी पहली विदेश यात्रा अफगानिस्तान की थी, जहां के बादशाह जाहिर शाह इस महान कलाकार से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें बेशकीमती फारसी कालीन और अन्य यादगार तोहफे भेंट किए। अफगानिस्तान के बादशाह अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो बिस्मिल्लाह के संगीत से मंत्र मुग्ध हुए हो। फिल्म निर्देशक विजय भट्ट भी एक समारोह में बिस्मिल्लाह की शहनाई सुनकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस वाद्य यंत्र के नाम पर ही अपनी एक फिल्म का नाम गूंज उठी शहनाई रख दिया। फिल्म हिट रही और बिस्मिल्लाह खान की एक धुन दिल का खिलौना है टूट गया पूरे देश में जबरदस्त हिट साबित हुई। फिल्मी दुनिया में इतनी बड़ी सफलता के बावजूद बिस्मिल्लाह खान ने फिल्मों में संगीत देने का काम सिर्फ 2 बार किया। विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ फिल्म संधि अपन्ना में वह जोड़ देकर कहते हैं, मैं फिल्मी दुनिया की बनावटीपन और चकाचौंध से तालमेल नहीं बिठा पाता। 9th, awards and recognition came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Central Hall in the United States of America. He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival, and in the Osaka Trade Fair. So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उन्हें एक के बाद एक कई पुरस्कार और सम्मान मिले। बिस्मिल्लाह खान पहले ऐसे भारतीय बने जिन्हें अमेरिका के प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया गया। उन्होंने मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी, कांस कला महोत्सव और ओसाका व्यापार मेले में भी हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह इतने मशहूर हो गए कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम का नाम उन्हीं के नाम पर तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रख दिया गया। 10. National award like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him. उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 11.
In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna, with the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness. He said, "All I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." साल 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार अपनी छाती पर सजाए और आंखों में एक अनोखी खुशी की चमक लिए उन्होंने कहा, "मैं बस यही कहना चाहूँगा, अपने बच्चों को संगीत सिखाएं। यह हिंदुस्तान की सबसे समृद्ध परंपरा है।" अब तो पश्चिमी देश भी हमारा संगीत सीखने आ रहे हैं। 12. In spite of having traveled all over the world, Khan Sahib, as he is fondly called, is existingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. A student of his once wanted him to head a Sainai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. But Khan Sahib asked him if he would be able to transport river Ganga as well. Later he is remembered to have said, "That is why whenever I am in a foreign country, I keep yearning to see Hindustan. While in Mumbai, I think of only Banaras and the holy Ganga. And while in Banaras, I miss the unique Tha of Dumrao." पूरी दुनिया घूमने के बावजूद खान साहब, जैसा कि उन्हें प्यार से बुलाया जाता है, को बनारस और डुमराव से बेहद लगाव था और उनके लिए ये दोनों शहर दुनिया के सबसे बेहतरीन शहर बने रहे। एक बार उनके एक शिष्य ने उनसे अमेरिका में एक शहनाई स्कूल का नेतृत्व करने का आग्रह किया। शिष्य ने वादा किया कि वह वहां बनारस के मंदिरों की हूबहू प्रतिक्रिया बनाकर बनारस जैसा ही माहौल तैयार कर देगा, लेकिन खान साहब ने उससे पूछा कि क्या वह गंगा नदी को भी वहां ले जा पाएगा। बाद में उन्हें यह कहते हुए याद किया जाता है, "यही वजह है कि जब भी मैं किसी विदेशी धरती पर होता हूँ तो हिंदुस्तान को देखने के लिए मेरा मन तरसता रहता है। मुंबई में रहते हुए भी मैं सिर्फ बनारस और पवित्र गंगा के बारे में ही सोचता हूँ, और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मुझे डुमराव के अनोखे मट्ठा की याद सताती है।" शेखर गुप्ता, "When partition happened, didn't you and your family think of moving to Pakistan?" शेखर गुप्ता, "जब बंटवारा हुआ तो क्या आपने और आपके परिवार ने पाकिस्तान जाने के बारे में नहीं सोचा?" बिस्मिल्लाह खान, "God forbid me leave Banaras. Never. I went to Pakistan once. I crossed the border just to say I have been to Pakistan. I was there for about an hour. I said namaskar to the Pakistanis and salam alaikum to the Indians. I had a good laugh." बिस्मिल्लाह खान, "अरे तौबा, मैं बनारस छोड़ दूं? कभी नहीं। मैं एक बार पाकिस्तान गया था। मैंने सरहद सिर्फ इसलिए पार की थी ताकि मैं कह सकूं कि मैं पाकिस्तान गया हूं। मैं वहां करीब 1 घंटे तक रहा। मैंने पाकिस्तानियों को नमस्कार कहा और हिंदुस्तानियों को सलाम वालेकुम। मुझे खूब हंसी आई।" रीडर्स डाइजेस्ट, अक्टूबर 2005। 13. Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Sahnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की ज़िंदगी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो आसानी से यह मान लेती है कि उनके जैसा एक सच्चा मुसलमान काशी विश्वनाथ मंदिर में हर सुबह बहुत ही स्वाभाविक रूप से शहनाई बजा सकता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed away on 21st August 2006 at the age of 90. After a prolonged illness, he was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का 21 अगस्त 2006 को 90 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया।
उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार दिया गया और भारत सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। ओके।